Good morning, all of you. Welcome to your SST class and students. Today, I am covering the next topic of your chapter 4 climate. The topic is Southern Oscillation and El Nino. This is the today's topic. But before going to today's topic, I explain you. I just revised you the previous video topic because both of these topics are interrelated to each other. Students, in the previous video or yesterday I explained you about the mechanism of Indian monsoon, in which we learn the 5 factors that affect the climate of our country, or we can say that that are helpful to brought monsoon winds in our country. There is the first is heating and cooling of land and water, जिसमें हमने पढ़ा था about the sea breeze and the land breeze. Then is shifting of ITCZ when it is shift towards the northern side in the summer season. Okay. Then third is high pressure belt over the Madagascar, and then Tibet plateau get intensely heated. इन दो में बच्चे मैंने आपको बताया था कि हाई मेडागास्कर पर हाई प्रेशर बेल्ट होता है ड्यूरिंग द समर सीजन, and at that time when the high pressure belt is at Madagascar, there is the low pressure belt over the Himalaya. So the winds start moving towards high to low pressure area, and because this the winds that crosses over the Indian Ocean, that is full of moisture, and that helpful to brought the monsoon or rainfall in our country. ओके तो यहाँ पर हाई प्रेशर ऑफ बेल्ट जो मेडागास्कर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. ऐसे ही तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो हीटअप हो जाता है ड्यूरिंग द समर, और वहाँ पर लो प्रेशर एरिया हो जाता है, और फिर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो एयर है अपनी तरफ जो खींचना है वो स्टार्ट कर देता है. ठीक है, तो ये 5 रीज़न थे हमारे यहाँ पर मानसून आने के. नाउ द सम अदर रीजन्स हियर अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब से अलग 2 रीजन्स हैं यहाँ पर, दैट इज एसो एंड अल नीनो. It has also been noticed that change in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon. Southern ocean, just see here, this is India, here the Mediterranean Sea, this one Madagascar, high pressure belt area. Here this is our southern ocean, means the Antarctic Ocean, or here we have the Pacific Ocean. यहाँ पर हमारा पैसिफिक ओशन है. ठीक है, यहाँ पर हमारा इंडियन ओशियन है, उससे नीचे हमारा इंडियन ओशन चलो मान के चलते हैं. सो इन द साउदर्न एरिया, साउदर्न ओशन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून. Normally when the tropical eastern South Pacific Ocean experienced high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experienced low pressure. Normally when the tropical eastern South Pacific Ocean, see here, this one is India, here this is the east direction, eastern south, this one eastern south, east में southern direction, here we have Pacific Ocean. ठीक है, इस ओशन में क्या है, here we have high pressure area, here we have high pressure area, okay, and tropical eastern Indian Ocean, and here we have low pressure area. Now why there is low and why there is high? देखो मैंने आपको बताया ना, मूवमेंट ऑफ सन वो इक्वेटर की तरफ से ऊपर आ गई है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, और यहाँ पर क्या हो गया है, ठंड हो गई है ना नीचे डाउन में, साउथ ईस्ट में, साउथ में नीचे, जहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया तो खैर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, हम उससे थोड़ी अबव एरिया की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर भी जो एयर है वो कूल है एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया. तो यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है. नाउ एयर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन में आएगी. ठीक है, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर एरिया. अब यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज़ अ
reversal in the pressure condition and the eastern Pacific has low pressure in comparison to the eastern Indian Ocean. बच्चे ये जो मैंने आपको हाई और लो प्रेशर बेल्ट का जो एक कम्बिनेशन बताया है, ये एक रिवर्सल है ऑफ विंड्स का. सम टाइम उल्टा भी हो जाता है, यहाँ पर लो और यहाँ हाई और यहाँ हाई, तो यहाँ लो, ये भी हो जाता है. ठीक है, तो ये रिवर्सल हो जाता है हमारे पास इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशन के कंपैरेटिवली. एंड दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर, और ये पीरियोडिक चेंज है, होता रहता है साल में, 2 साल में, 3 साल में, ये एक पीरियोडिक चेंज है जो होता रहता है. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर कंडीशन इज़ नोन एज साउदर्न ऑसिलेशन, और हम इसी पीरियोडिक चेंज को साउदर्न ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं. This is a change of the pressure belts in the eastern Indian Ocean and the south eastern Indian Ocean. Okay, so the difference in pressure and Tithi drawn in northern Australia Indian Ocean is computed to predict the intensity of the monsoon. ये ध्यान में रखना है. Difference between these pressure condition is helpful for predicting the intensity of monsoon. Predicting of intensity of monsoon, ये लाइन समझना बहुत ज़रूरी है. Just listen me very carefully. Students, normal life में many time when there is the time of arrival of monsoon or in the summer, in the starting of summer season in the month of May, कई बार जब वेदर फोरकास्टिंग को हम सुने अगर ध्यान से, तो सम टाइम वेदर फोरकास्टर सेड दैट देयर इज़ द in this year the monsoon is less or monsoon is late or the monsoon is early or on time. ठीक है, हम कई बार ये न्यूज़ में सुनते हैं कि इस बार मानसून जल्दी आ रहा है या मानसून डिले है, लेट है, या फिर ये भी होता है कि मानसून इज़ ऑन टाइम, ये अपने टाइम पर आएगा. एग्जैक्टली इंडिया में मानसून आने का जो एग्जैक्ट टाइम है वो 1 जून है एट केरला कोस्ट. केरला की कोस्ट पर 1 जून पे हमारा जो मानसून है वो हिट कर जाता है. इफ़ देयर इज़ डिले देन इट इज़ डिले थ्रू आउट द इंडिया, वो पूरे भारत में ही डिले होगा अगर डिले होगा तो. ठीक है, अब ये जो प्रेडिक्शन है कि मानसून इज़ ऑन टाइम और इज़ डिले और वो कम है या ज़्यादा है, वो जो प्रेडिक्शन है वो ये साउदर्न ऑसिलेशन से मिलती है. ये जो प्रेशर कंडीशन है ये हमें बताती हैं कि मानसून कैसा आएगा, अच्छा आएगा, नहीं आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, टाइम पर आएगा या डिले आएगा. ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट्स जो हैं ये हमें ऑस्ट्रेलियन इंडियन ओशन, मैंने आपको बताया ना कि साउथ इंडिया में जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो नियर अबाउट ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, और यहाँ पर लो प्रेशर है, और ये प्रेशर कंडीशंस दोनों चेंज होती रहती हैं. ठीक है, चलिए नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली. इंडियन ओशियन is compounded to predict the intensity of the monsoon if the pressure difference were negative. अगर इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, तो क्या होगा? इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून. कि अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट के बीच का डिफरेंस नेगेटिव है, एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम ईस्ट में से साउथ ईस्ट के प्रेशर को माइनस करते हैं. अगर यहाँ लो है और वहाँ हाई है तो वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो क्या होगा कि मानसून एवरेज है और लेट है, बिलो एवरेज है और लेट है. बट अगर यही हमारे पास पॉजिटिव आता है तो मानसून इज़ गुड. ठीक है, इट वुड मीन below average and late monsoon. A feature connected with the SO is the El Nino phenomena. SO से जो फीचर हमारा कनेक्टेड होता है वो अल नीनो है. अल नीनो एग्जैक्टली इज़ अ विंड. अल नीनो एक विंड है. ठीक है, अब अल नीनो फिनोमिना क्या है वो हम रीड करेंगे. अल नीनो फिनोमिना इन विच अ वार्म ओशियन करंट दैट फ्लोज पास द पेरवन कोस्ट को अल नीनो एक वार्म ओशियन करंट है जो फ्लोज उसको क्रॉस करती है. ठीक है, एंड इन प्लेस ऑफ द कूल पेरिवियन करंट
एवरी 2 to 5 ईयर्स और उसको प्लेस करती है। ये वार्म ओशन करंट है और पेरू के आसपास जो है वहाँ पर कूल ओशन करंट्स चलती हैं। तो 2 से 5 साल के बीच में ये इसको रिप्लेस करती हैं। कूल की जगह क्या आ जाती है, वार्म ओशन करंट्स आती हैं। जब वार्म ओशन करंट्स आती हैं तो जो ये वाला जो साउदर्न ऑसिलेशन है इसका इफेक्ट चेंज हो जाता है और हमारे पास मॉनसून जो है वो डिले हो जाता है और बिलो एवरेज हो जाता है। ठीक है, the change in the pressure condition are connected to the El Nino. ये अल नीनो से कनेक्टेड रहती हैं एंड द फिनोमिना इज रेफर्ड टू एज अल नीनो एसओ, ENSO, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, इससे ये कनेक्टेड होती हैं। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि साउदर्न ऑसिलेशन क्या है। साउदर्न ऑसिलेशन हमारी प्रेशर कंडीशन है ईस्ट और साउथ ईस्ट इंडियन ओशियन के बीच की। ठीक है, अल नीनो क्या है, अल नीनो एक वार्म ओशियन करंट है जो पेरू कोस्ट के आसपास चलती है और इस ओशियन करंट में पीरियोडिक चेंज होता रहता है, सम टाइम वार्म सम टाइम कूल। ओके, और ये जो पीरियोडिक चेंज है ये हमारे यहाँ पर मॉनसून लाने में इफ़ेक्ट करता है। ओके, नाउ आई एम रीडिंग अल नीनो। एग्जैक्टली अल नीनो का मीनिंग क्या है और ये अल नीनो है क्या। अल नीनो को अगर हम क्रिस लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में चलते हैं तो इसका मतलब होता है, सॉरी स्पेनिश वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है चाइल्ड। ओके, चलिए, नाउ दिस इज द नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ ए वार्म ओशियन करंट along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current। और ये टेम्परेरी रिप्लेसमेंट होता है। वैसे नॉर्मली वहाँ पर कोल्ड हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, बट कुछ टाइम पीरियड के लिए आफ्टर फ्यू ईयर्स वहाँ पर गर्म हवाएं चलने लग जाती हैं। पेरू का कॉस्ट कौन सा है ये मैं आपको बता दूँ। पेरू का कॉस्ट यहाँ पर नहीं है हमारे पास, एक्चुअली मैक्सिको के पास पेरू कॉस्ट है हमारे पास। ठीक है, चलिए, सो देन व्हाट हैपन, अब क्या होता है जब उसमें आ जाता है तो चेंज हो जाता है एज ए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरेवियन करंट। एंड अल नीनो इज़ अ स्पेनिश वर्ड, ये एक स्पेनिश वर्ड है दैट मीनिंग द चाइल्ड एंड रेफर्स टू द बेबी क्रिस्ट एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग द क्रिसमस। स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द चाइल्ड, और इसको हम बेबी क्रिस्ट क्यों रखा गया है इसका नाम यहाँ पर, क्योंकि ये क्रिसमस के आसपास जो है वहाँ पर हवाएं जो है वो चलती हैं अल नीनो की। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द अल नीनो लीड्स टू द इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग द ट्रेड विंड्स इन दिस रीजन। अब यहाँ पर प्रेशर कंडीशन जब हाई हो जाती हैं, सॉरी लो हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है, उससे जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीक हो जाती हैं। ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड्स हैं जो कि इस एरिया में चलती हैं। अब परमानेंट विंड्स क्या होती हैं ये मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है हमारा पास विंड्स का। यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझ लो कि ये ट्रेड विंड्स को बिलो एवरेज कर देती हैं या वीक कर देती हैं। दैट्स वाई जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। ओके, चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, द ऑफसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल ऑफ द मानसून। नाउ वी हैव टू बी लर्न कि मानसून ऑफसेट वन सेट आ कब रहा है और विड्रॉल जा कब रहा है। इंडिया में मानसून कब आ रहा है, कब जा रहा है, और उसके बाद हम इस चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट वाज सीजन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द onset of the monsoon and withdrawal. Onset means the arrival of monsoon. Withdrawal means when monsoon is going back. जब मानसून वापस जा रहा है दैट इज़ विड्रॉल। ओके, चलिए, तो मानसून का आना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे ऑल नो अबाउट द मानसून। बच्चे इसको मैं आज डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा सिर्फ आपको समझा रही हूँ, बाकी इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मानसून क्या है, मानसून विंड्स अगर मैं आपको बता दूँ, हमने पहले पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि मानसून इज़ अ अरेबिक वर्ड। ये हमारे पास एक
अरेबिक वर्ड है दैट कम नोटेड डाउन बाय द सेलर्स, अरब सेलर्स के द्वारा नोट किया गया। और वाई, बिकॉज जो विंड्स चलती थी वो ट्रेडर्स की बहुत हेल्प करती थी शिप को मूव करने में, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है वो मॉनसून विंड्स रखा गया। यहाँ पर अब वही विंड्स आती हैं, ट्रेड विंड्स, जो कि परमानेंट चलती रहती हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो मॉनसून अनलाइक द ट्रेडर्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सुएटिंग इन नेचर। मॉनसून विंड्स जो हैं वो पल्सुएटिंग है, पल्सुएटिंग मतलब चेंज होती रहती हैं, हमेशा एक जैसा मॉनसून नहीं आता, ठीक है। अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, और वो किससे इफेक्ट होती हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, जैसे जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, अल नीनो, साउदर्न ओशियन, हाई प्रेशर बेल्ट ओवर मेडागास्कर, इन सभी कंडीशन से वो इफेक्टेड होती हैं, इसलिए वो कम ज़्यादा होती रहती हैं, ठीक है। चलिए, नाउ on its way over the warm tropical seas, the duration of the monsoon is between 100 to 120 days. What was the time period of monsoon? Students, as we all know that in our country rainy season come in the month of June and it remain rainy till the month of August. Almost 3 months, June, July and August. So अगर हम रफ आइडिया लगाएं तो 30 इट इज़ 120 डेज़, ठीक है। तो नियर अबाउट 120 डेज़ का हमारा 100 to 120 डेज़ का हमारा जो एक साइकिल है वो मॉनसून का होता है। 30 60 90 100 मतलब अगस्त एंड तक हमारे पास मॉनसून विंड्स रहती हैं, ठीक है। तो मॉनसून जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, 100 to 20 डेज तक हमारा मानसून चलता है, जून टू मिड सितंबर। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजिंग सडनली एंड कॉन्टिन्यूड कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। जब मानसून विंड्स एग्जैक्टली हमारे यहाँ पर पहुँच जाती हैं तो क्या होता है कि जो आम तौर पर थोड़ी सी बारिश होती है वो हैवी रेनफॉल में चेंज हो जाती है, और कई बार तो लगातार कॉन्स्टेंटली बारिश होती रहती है 3 4 5 6 दिन, ठीक है। ऐसा होता है, अब बहुत रेयर होता है ये चांसेस, बट हो जाते हैं, ठीक है। एंड द arrival the normal rainfall increase suddenly continues constantly for several days, this is known as the burst of the monsoon। जब कई दिनों तक रेगुलर बारिश होती है तो हम उसे कहते हैं ब्रस्ट ऑफ मानसून, कि मानसून एकदम से ब्रस्ट हो गया, फट गया, बहुत हाई लेवल पर आ गया, ठीक है। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शॉर्ट्स, और हम इन्हें प्री मानसून शॉर्ट्स के रूप में भी डिस्कस करते हैं। प्री मानसून शॉर्ट्स वो होती हैं जो मानसून एग्जैक्टली मानसून विंड्स के आने से पहले थोड़ी बहुत बारिश कर जाती हैं, हम उन्हें प्री मानसून विंड्स कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर कई बार जून के बिल्कुल 1 जून में ही बारिश थोड़ी बहुत हो जाती है, तो वो प्री मानसून विंड्स हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे यहाँ पर 1 जून को विंड्स नहीं आती है मानसून विंड्स। इन आर एरिया मानसून विंड्स अराइवल टाइम, एग्जैक्ट अराइवल टाइम इज़ 15 जून। हाँ, इससे डिले हो जाता है, इससे अर्ली भी आ सकती हैं, बट 15 जून जो है वो राइट टाइम है हमारे यहाँ पर मानसून विंड्स के आने का, ठीक है। तो जनरली ब्रस्ट ऑफ मानसून हो जाता है, डिस्टिंग्विश प्री मानसून शॉर्ट्स होती हैं। मानसून अराइव्ड एट द साउदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिसुला जनरली एट द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिसुला, इंडियन पेनिसुला की यहाँ पर साउदर्न टिप पर वो जून के फर्स्ट वीक में अराइव्ड हो जाते हैं मानसून विंड्स, ठीक है। मानसून विंड्स एंड generally by the first week of June, subsequently it proceed into two, the Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch। अब ये ब्रांचेस क्या हैं, किस तरह से मूव करती हैं, कैसे हैं, ये मैं आपको कल समझाऊंगी। आज तक सिर्फ इतना ही कि मानसून में 100 to 120 डेज़ होते हैं, ब्रस्ट ऑफ मानसून कांस्टेंट विंड्स को हम कहते हैं, दैट्स इट। और सेकेंडली कि मानसून जो है वो 2 शाखाओं में, 2 ब्रांचेस में मूव करता है, वन इज़ बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड सेकेंड इज़ अरेबियन सी ब्रांच। नाउ द ब्रांचेस आई विल डिस्कस इट टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।
Thank you and have a nice day.